Now breath, हम सब के लिए, हम सब जानते हैं कि सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जीवित हैं. सांस बंद हो गई तो भाई हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये एक जीवन शैली जो है, एक one cycle of life is now completed. Okay? But while we are here, there is a beautiful thing that you all and we all need to respect, and that is how we breathe, how much we breathe. I'm wanting all of you now to do this experiment. I'm going to time you. I don't know if you all have been a part of this experiment with me before. हो भी तो भी फिर से करिए. Okay? I am going to start a timer for 1 minute. And जहां पर भी आप है, एकदम रिलैक्स करके आपको सांस लेनी है. बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि आप प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग करो, वो सब अभी नहीं करना है. जो अभी आप रोज के इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वैसे ही ब्रीदिंग करनी है. ओके, सो I will start the timer. 1 breath is equal to in and out is 1 breath. Okay, and your time starts now. Okay, so just count your breaths, how many breaths you're taking in this 1 minute. Today I also have put a background. I was feeling like the rains, and it feels so good to come back from Delhi. So I said, okay, let us have a nice backdrop. So relax, keep taking your breath in, breath out. Don't be in a rush. Normal breathing. Okay, done. So, okay. Okay, so who can tell us how many breaths you took? 21. 20. Who else? 18. 18. 11. 11. 10. Pooja, how are you, Pooja? Good to see you. Long time. I'm good. Hello, how are How's you? your baby? He's fine. Okay. Everybody should congratulate Pooja for being a new mummy. Oh, Oh, wow. Congratulations. congrats. Thank you. Yes, she's a new mummy now. And lot of work, lot of more responsibility. So it's good to have you back, Pooja, with us. Thank you, Nupur. Thank you. I used to think फिर मुझे लगा आज तो कर लेते अभी he is sleeping तो मैंने Something कहा is wrong. I should Okay. attend. I think Nupur जी की तरफ network issue हुआ है. हाँ, थोड़ा सा. Okay. Okay. So everybody has taken how many breaths? Now, what we need to understand here is, if you have ever seen a dog breathing, a dog breathes like this, right? Dog कितनी जिंदगी जीता है? 13 साल. इत्तुसी, yes, इत्तुसी. 13 साल, 15 साल. और एक टर्टल, टॉर्टोइज या एक क्रोकोडाइल अगर आपने देखा है तो कितनी जिंदगी जीता है? They live at least 300, 400. Yes. They take about 1 breath a minute. Okay? 1 breath. In fact, crocodile takes less than that also. Now, what do we understand? That the lesser you breathe, the more energy you conserve. That is number one. That doesn't mean
when I say कि lesser, that doesn't mean कि कम सांसें as in कम सांसें लेनी है कि आपको जितनी चाहिए उससे कम लीजिए. It's not like that. लंबी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है. So we say short breath, short life. Long breath, long life. So अगर आप short breaths लेंगे, that means shallow breathing करेंगे, तो you will have a short life. You will have more illnesses. But if you breathe longer, लंबी सांस, गहरी सांस लेंगे, तो what will happen? You will have a longer life, less illnesses, and much better life. Okay? So हमें practice करनी है ताकि हम लंबी सांसें ले सके. अब लंबी सांसें लेनी है तो उसके लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने सांस को लेकर. I mean, not mother-in-law, वो तो है ही, but the breath. So now, how do we be conscious? Okay, when we are talking to our mother-in-law, we are very conscious, no? We are very cautious. Like that, even with this सांस, we have to be very, very cautious. तो उसके लिए एक बहुत simple सी practice है. Okay, so what do we do in that? उस practice में हम left nostril से सांस लेंगे. Okay, left nostril से सांस लेंगे, यानी कि चंद्र नाड़ी से सांस लेना शुरू करेंगे. 4 counts. फिर हम दोनों सांसें बंद करेंगे, दोनों nostrils बंद करेंगे. Okay, this is कुंभक. We'll add a बंधा, कुंभक. Okay, 4 counts. फिर हम राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे, सूर्य नाड़ी से सांस छोड़ेंगे, 4 counts. और फिर उसमें हम सांस छोड़ने के बाद हम फिर से बंद करेंगे इन शून्य, 4 counts. फिर हम सांस लेंगे फ्रॉम द राइट साइड, 4 counts. बंद करेंगे 4 counts. सांस छोड़ेंगे 4 counts, बंद करेंगे 4 counts. बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे. ओके, सो दिस इज वन साइकिल. लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़ना है, राइट से सांस लेनी है, लेफ्ट से छोड़ना है. ये वन पूरा राउंड होता है. और सांस लेने और छोड़ने में दोनों के बीच में 4-4 काउंट बंद भी करना है. ओके, प्रैक्टिस करेंगे अभी. और इसमें कोई क्वेश्चन अभी के लिए? ये खाना खाने की इमीडिएटली बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें खाना खाने के जस्ट बाद नहीं करनी चाहिए. थोड़ा गैप देना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद आपका बॉडी डाइजेशन में होता है. It is into the process of digestion. So at that time, we do not practice pranayama. Okay. Yes, breathing ये जो हम सिखा रहे हैं, ये आपको पूरे दिन ही प्रैक्टिस करनी है. Okay. लेकिन जब तक आप वहां पर कॉन्शियसली पहुंचते हैं, तब तक के लिए ये एक प्रैक्टिस होती है. तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप खाना जस्ट खाने के बाद इसे न करें. अगर आपने अभी जस्ट खाना खाया है, for now it is okay because we are going to just learn how to do it. But in general, whenever you are wanting to practice it, at least कभी भी प्राणायाम करते हैं ना, तो हमें कम से कम 1 घंटे का तो इस खास इसके लिए 1 घंटे का गैप देना है. अदरवाइज नॉर्मल प्राणायाम यानी कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर आप करते हो शीतला, भ्रामरी, ये सब के लिए हमें कम से कम इनफैक्ट 3 घंटे का गैप देना चाहिए. ओके, Yes. राइट. सो अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे. कोई भी प्रैक्टिस के लिए ऑलवेज योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट. सीधा बैठना है हमेशा. कभी भी इस तरह से नहीं बैठेंगे, झुकेंगे नहीं, वो सब नहीं करेंगे. हमेशा सीधा बैठेंगे. Spine should be straight. Spine क्यों? Because your energy flows through the spine.
आपकी एनर्जी स्पाइन के थ्रू फ्लो करती है, लाइक अ स्नेक और लाइक अ गणपति की सूंड। ओके, ऊपर नीचे से ऊपर। तो हम सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? नाभि से लेकर शुरू करते हैं, and we move all the way to our nostrils. So breath is also going like this, and then releasing. Always sit up straight. Even when you want to breathe, you should sit up straight. Now I'll give you an example of this. आप जब सांस लेना बंद कर देते हैं, that means when you die, what happens to us? अपनी spine कैसे हो जाती है? नको करो. एकदम कड़क. It becomes very kadak, right? क्योंकि energy stops flowing. There is no flow of energy. So that is why till there is flow of energy, we should sit up straight. Okay, relax, and we will start with the left nostril. आपके लिए मैं अभी count करूंगी. Those who are there on this, you can keep your videos on so I can see you and I can see properly what you're doing and not doing. We will start from our left nostril. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. दोनों nostril बंद करके hold your breath. 1, 2, 3, 4. Right से छोड़िए सूर्य नाड़ी से. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right से लीजिए. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Left से छोड़िए. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. फिर से लेफ्ट से लीजिए. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right से छोड़िए. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right से लीजिए. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Left से छोड़िए. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Relax. Who is having any difficulty in this? Nipur, after leaving both taking and leaving now, last time I was feeling very breathless. Because you have no practice of this. Yeah. अगर 4 काउंट में नीलम आपको तकलीफ हो रही है तो you really need to practice. क्योंकि हम इसमें इनफैक्ट अभी तो हम 4 करते हैं, एक्चुअली आपको ऑलमोस्ट 1 मिनट तक जाना है. Ma'am, if we practice Wim Hof method, this will be more stronger. Like we can hold for more time. Yes, Much correct. more longer. much longer. तो आपका जो होल्ड है, it should start going all the way to almost 1 minute. तो हम क्या करते हैं, हम जब सांस लेते हैं, बाय द वे आप हाथ कैसे रखेंगे? थंब ऑन योर राइट, लिटिल फिंगर ऑन योर लेफ्ट, इस तरह से रख सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है? थंब ऑन योर राइट and your 2 fingers on your ajna, and then your little finger on your nostril on your left side, like this. Okay, so this is another way. Okay, this helps to concentrate also. One Okay. more question. My Chandran Nadi is always not open. I can't breathe to left. So Only to right. हाँ, तो रात को निवाया घी नाक में डालना जरूरी है. नंबर 1. नंबर 2, जलनेति करनी जरूरी है. ओके, और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल आपकी ठीक से नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि एक, आपकी नींद नहीं बराबर है. दूसरा, योर राइट ब्रेन, दैट मीन्स द राइट ब्रेन, जहां पर इमोशन होता है, जहां पर आपकी सोच होती है, all of that, your creativity, कहीं ना कहीं it is getting hampered. नीलम, चेक, ऐसा हो रहा है क्या?
Yeah, little bit stress is going on and नींद भी नहीं हो रही है as we speak. So right nostril, I mean आपका जो left nostril है चंद्रनाड़ी, it's your cooling point. Yeah. Every 45 minutes आपका nostril का breath बदलता है. Every 45 minutes. Every 45 minutes left may be dormant or left may be stronger. 45 minutes बाद your right will be stronger. उसके बाद again your left will be stronger. So it keeps alternating, by the way. Okay? हर बार दोनों एक समान नहीं होते. ईड़ा पिंगला एक दूसरे में बदल करते रहते हैं. फर्क सिर्फ इतना है, रात के समय जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, तब हमारा जो चंद्र नाड़ी है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आपको शांतपना, एकदम आप शांत में चले जाएं धीमे धीमे और आपको अच्छी नींद आए. एंड इन द डे राइट नॉस्ट्रल शुड बी स्ट्रॉन्ग, या सूर्य नाड़ी शुड बी स्ट्रॉन्गर. ओके, क्यों? क्योंकि दैट कीप्स यू वार्म, that keeps you warm, that keeps you active. तो कभी भी आपको ऐसा लगे दिन में कि मुझे बहुत आलस आ रहा है, या मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, या आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे. लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे. ये आप कम से कम 10 मिनट के लिए करेंगे. यू विल नोटिस दैट यू आर much more brighter, much more awake. और शाम के समय या रात के समय अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत कुछ हुआ है पूरे दिन में, बहुत कुछ है माइंड में, और बिल्कुल आपको नींद जैसी ठीक से नहीं आ रही, तो हम राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे. ओके, चंद्र सांस, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे ओनली फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल for about 10 minutes. ये करते समय आप त्राटक भी कर सकते हैं. ओके, सो त्राटक करने से भी रात को अच्छी नींद आएगी आपको. सो लेफ्ट नॉस्ट्रल भी खुलेगा. और सबसे खास बात हमें क्या भूलना नहीं चाहिए, घी या सरसों का तेल. इस समय सरसों का तेल इस मौसम में बहुत अच्छा होता है. नाक में, नाभि में, अपने नाभि में और पगथली में. ओके, इन योर फीट आपको क्या करना है? हल्की सी मालिश करनी है. नाभि में थोड़ा सा घी या सरसों का तेल, और दोनों नॉस्ट्रल्स में घी या सरसों का तेल डालना है. Ma'am, I have a question regarding this, like putting oil or ghee in navel. हम जब सो जाते हैं, we keep on changing our position, so I always get confused. Like, will not it like drain down? क्या है? Won't it get drained out? Like it won't तो absorb आप it. नाभि में डालिए और हल्का हल्का उसको मालिश करते रहिए. ठीक है, जितना सोख होना है थोड़ा बहुत सोख होगा. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वहां पर ना आप थोड़ा सा कॉटन रखिए और एक बैंडेड से या किसी से आप वहां पर उसको स्टिक कर लीजिए चाहिए तो. So you can I'm keep like thinking a- I sleep like पेट के ऊपर ऐसे सोती हूँ, ऊपर, so that's the main reason I'm So asking. then you wait for some time. Okay. वेट, थोड़ा हल्का हल्का पेट के इर्द गिर्द, वहां पर सारे हमारे स्टमक रीजन के, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं. सो इसीलिए आप हल्की हल्की पूरे उसके इर्द गिर्द ना, तो व्हाट आई से, ये हमारी जो 4 उंगलियां है ना, वो 4 उंगली अपने नाभि के ऊपर, 4 उंगली नाभि के नीचे, 4 उंगली नाभि के साइड, 4 उंगली नाभि के साइड. तो ये पूरा एरिया ना आप हल्का सा मालिश भी कर सकते हो उसमें. तब तक उसमें तेल जाने दीजिए या घी जाने दीजिए, और फिर उसके बाद आराम से आप सो जाइए. ओके, सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस. और ये करना चाहिए, बच्चों के लिए भी करना चाहिए, आपके लिए भी करना चाहिए. इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. And I find it effective when I like put oil, mustard oil in morning hours, like immediately after I wake up. That is also good, no problem.
आप यूरिन भी डाल सकते हो इन द मॉर्निंग टाइम जब आप Ma'am, उठते I हो. do that with neti pot, so like mustard oil is working best. Okay. Oh, very good. So जब आप when you're doing jalaneti with urine, and then you can आराम से put सरसों का तेल. That is excellent. Yeah. So that is very good. So Neelam, you should start practicing it without fail. ठीक है, आज से ही शुरू कर. Affect the health also. What? One more question, please. It affects the health or what if you don't? Very eat? big way. अच्छा. How it affects the health? क्योंकि हमारी जो नाभि है, all 72,000 nadis come and meet there. That is the energy center, energy point. That is the engine. That is what you call mothership, like that. That is the mothership there. That is what connects us to our mother. That is the place of the energy points. So उससे हम हमेशा हमें एक्टिव रखना है. तो हम कहते हैं ना, सो आप कभी भी किसी की एनर्जी हमें समझनी है कि अच्छा मेरी एनर्जी कैसी है, तो हम नाभि में, हाँ, नाभि में अंगूठा डाल के हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है. Yeah. Correct? So that is why it is so important. Okay, so let's do one more time this practice. लेफ्ट से शुरू करेंगे और सांस लेंगे 1 2 3 4, दोनों नॉस्ट्रल बंद, 1 2 3 4, राइट से छोड़ेंगे 1 2 3 4, दोनों बंद, 1 2 3 4, राइट से लेंगे 1 2 3 4, लेफ्ट बंद करेंगे 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे 1 2 3 4, दोनों बंद कीजिए 1 2 3 4, फिर से सांस लेंगे 1 2 3 4, नाउ बंद फॉर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, बंद 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लीजिए. नीलम कंटिन्यू 1 2 3 4, बंद 1 2 3 4 5 6 7 8, छोड़िए 1 2 3 4 5 6, पकड़ के रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, breathe in and relax. Okay, so like this आपको अपने हिसाब से इसको बढ़ाते जाना है. So personally, universally they will say 4 7 8, you know, but my personal opinion is always कि आपको अपनी शक्ति देखनी चाहिए कि मैं सांस अगर 4 गिनती ले रही हूं, मैं कितनी देर तक उसको बंद रख सकती हूँ, चाहे वो 10 काउंट्स हो, 12 काउंट्स हो, 15 काउंट्स हो, 30 काउंट्स हो. धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बढ़ती है. और फिर सांस जब छोड़ते हैं ना शून्य में, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है कि आप पूरी तरह से उसे छोड़िए. मतलब इस तरह से आप शून्य, एकदम शून्य हो जाने चाहिए, लाइक यू हैव नो मोर ब्रेथ टू लेट गो, एंड देन बंद. ओके, so this practice we have to keep improving and make it better and better and better. जब हम इसको better करेंगे, आप notice करेंगे कि 1 minute में you are taking hardly 6 breaths. Okay, 6 to 8 breaths is what a normal breathing thing is. But of course, when we are living in the city, we are working, we are doing so many activities we are doing. So personally, 10 to 12 breaths is also perfectly okay. Okay, so 10 to 12 breaths is great.
if you are regular with your pranayama, regular with this practice, so definitely you will come anywhere between 8 to 10. ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है। अब इसके अलावा हमारी जो दूसरी चीज हमको जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि प्राणायाम में सबसे पहली चीज जिससे हम शुरू करते हैं वो है कपालभाति। ओके, सो कपालभाति मुझे लगता है यहाँ पर जो भी मौजूद है सबने सुना होगा, सबने कहीं ना कहीं आपने किया होगा। आज एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगी, कपालभाति इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राणायाम। ओके, कपालभाति इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राणायाम। कपालभाति इज अ क्लेंजिंग प्रोसेस, सो इट इज अ प्री प्राणायाम। आप जब प्राणायाम करना चाहते हैं तो पहले आप कपालभाति करेंगे ताकि आप अपनी नाड़ी को साफ कर सकें और उसे तैयार कर सकें फॉर द प्रोसेस ऑफ प्राणायाम। दैट इज व्हाट इज कपालभाति। कि आज मैं अगर करना चाहती हूँ प्राणायाम या चाहता हूं तो पहले अपने आप को मुझे तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि अभी जैसे अंकित ने कहा उसने हैप्पीनेस कोर्स किया है, उसमें सुदर्शन क्रिया की होगी। सुदर्शन क्रिया के पहले प्रेपरेटरी कोर्स सारे आसनास होते हैं। ठीक उस तरह से हर एक क्रिया जब करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रेपरेशन करना पड़ता है, एंड कपालभाति इज दैट प्रेपरेशन। ओके, सो कपालभाति इज, यस, हमने उसको एक कॉमन चीज दे दी है कि ओके इट इज अ प्राणायाम, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, विच इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज हमें उसे बाद में नहीं करना है, एक ऑर्डर में जाना चाहिए ना, तो हमें उसे बाद में नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी प्राणायाम करने से पहले हमें कपालभाति करनी चाहिए, इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो कपालभाति सबको आती है कि नहीं आती? ओके, वेरी गुड। कौन बताएगा? स्टैंडिंग कपालभाति आता है। ओके, व्हाट अबाउट सिटिंग रेगुलर? Ma'am, Sudarshan, when we do Sudarshan Kriya, first we do Ujjayi breath, Bhastrika, and then the last round, is that similar to Kapalbhati? No. No connection. Okay, no connection. Yes. Yes, Padmashri. यस, कपालभाति में सांस लेते हैं हम लोग पूरी, देन Okay. छोड़ते हैं, एंड Okay. देन विथ फोर्सफुली हम लोग सांसें छोड़ते हैं एंड पेट को अंदर खींचते हैं। पेट को अंदर खींचते हैं। सो पेट को अंदर खींचते हुए सांस छोड़ते हैं। यस, Okay, so it is active exhale. Active exhale, passive inhale. यस, ओके, सो हम सांस छोड़ते हैं, पेट को अंदर लेते हैं। इसमें आप ध्यान में रखिए, कोई भी इस तरह से हम जब प्राणायाम करते हैं, फेस शुड बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, एक हल्की सी इनफैक्ट मुस्कान होनी चाहिए, बिल्कुल ये सब नहीं है। ओके, स्ट्रेस नहीं देना है अपने आप को। वी शुड बी रिलैक्स्ड व्हाइल डूइंग प्राणायाम, दैट इज मेंट फॉर गिविंग यू रिलैक्सेशन, सो वी शुड बी रिलैक्स्ड। ओके, नो फोर्सिंग योरसेल्फ। And in today's thing, Kapalbhati has a very new name, which is also called as breath of fire. Okay, so if you've ever heard breath of fire from somebody, it means Kapalbhati. Okay, so that is again one more way of expressing it. So आप करेंगे तो हम मुद्रा कौन सी कर सकते हैं उसमें? वायु प्राण और पान मुद्रा दोनों कर सकते हैं। कौन से?
प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा और अपन अपन अपान मुद्रा। ओके, सो ये दोनों मुद्रास आप लोग कर सकते हो while doing। क्यों? बिकॉज इट improves योर प्राणा। हम क्यों करते हैं प्राणायाम? ताकि हमारा प्राण बढ़ सके, हमारी प्राण बेटर हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं। अभी एक और खास बात आपको बताती हूँ। हमारा शरीर 5 हिस्सों में बटा है। ओके, आई एक्चुअली विश आई हैड let me see if I can show you a diagram. I will show you a diagram. कहीं तो है मेरे पास, just wait. तो हमारा शरीर 5 हिस्सों में बटा हुआ है। वो 5 हिस्से क्या है? प्राणा, आगे अपान, मिल गया। हमारा ये बॉडी एक प्राणिक बॉडी है, सो 5 हिस्सों में बटी है। प्राण, अपान, समान, उद्यान, व्यान। क्या? ओके, सो प्राण कहाँ होता है? अपना रेस्पिरेटरी। तो इसे हमें बढ़ाना है, दैट इज वाई हम प्राणायाम करते हैं। सो इट इम्प्रूव्स। देन आगे अपान, अपान। अपान इज पानी, नाविल, नाविल एरिया, कौन सा एरिया? नाविल नाविल नेवल। नेवल। एक्सक्रीटरी, बेसिकली अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, फिर है समान। समान इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव। So all the digestion system happens in samana. Then hai udyana. Udyana is all our senses. सेंस। Okay, all the senses. And then is vyana. Vyana means the space. Yani ki all our joint systems. Okay, movement. So I will show you a picture here. Right. See, this is what okay. वो जा रहा है। The pranic body. Yes, the pranic body. ठीक है? So this is the pranic body. I'll click a picture and put it on the group. I'll do that. So I'll put a picture of this for all of you. ठीक है? तो क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि पहले हम कभी भी जब सुबह से हम शैतानी करते हैं अपनी आप की, तो हम पहले क्या करते हैं? Excretion, That is called apana, षट कर्म। षट कर्म करते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, उसके बाद हम करते हैं आसना। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं आसना। सो जब हम आसना करते हैं तो पता है क्या हो जाता है? ये जो हमारे 5 प्राणिक, ये हमारा जो प्राणिक शरीर है ना, उसमें क्या होता है? हमारी जो जितने भी ये प्राण, अपान, उद्यान है ना, ये क्या हो जाते हैं? जूस बन जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। आसना में ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हो आप, कोई भी चीज करते हो, डांस करते हो, स्विमिंग करते हो, तो क्या हो जाते हैं? ये लोग घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से। दे मिक्स अप बिटवीन ईच अदर। ओके, सो प्राण कहीं नीचे चला जाएगा, व्यान थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इस तरह से मिक्स हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट वी डू प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करते हैं? ताकि प्राणायाम along with mudra
एंड बंधा से क्या होता है, हमारे ये जितने भी प्राणिक बॉडी है वो वापस धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाए। और उसके बाद हम फॉलो करते हैं विद ध्यान। सो द 5th स्टेज इज ध्यान, meditation. The 4th one is bandhas and mudras. Okay. And the 5th one is meditation, dhyana. क्यों? क्योंकि ध्यान में जो ये एनर्जीज वापस अपनी अपनी जगह पे आई है, ध्यान करने से वो क्या हो जाती है, नंबर 1 बैलेंस हो जाती है, नंबर 2 उसकी एनर्जी बढ़ जाती है. So we increase the energy or we balance the energy through meditation. Okay. So best part actually, in fact, with bandhas and mudras, we balance it. And I must say with meditation, we increase it. Okay. So this is the 5 stages which we should follow. Correct? So that is why where pranayam comes in, 3rd part. Our breathing techniques. Why this comes in is because of this. क्यों? क्योंकि वो सारे ऊपर नीचे हुए हुए रहते हैं. ये सिर्फ एक्सरसाइज, आसनास, ये सब करने से ऊपर नीचे नहीं होते. अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, अगर आपका सोने का सिस्टम सही नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो उद्यानों को क्या होगा, है ना, इट विल बिकम हेवाय. अगर आप ठीक से एक्सरसाइज इनफैक्ट नहीं करेंगे तो मुझे बताइए व्यान का क्या होगा, मूवमेंट होगी, नहीं होगा एनर्जी मूवमेंट. दैट इज व्हाई वी नीड प्राणायामा, because pranayama will allow the energy movement to start, energy movement to, it helps the movement of energy in our body. And this is the reason why we should start with Kapalbhati, because Kapalbhati क्या करता है, Kapalbhati अपनी जो energy point है, जहां नाभि जिसको कहते हैं, it activates that energy point. And it takes it all the way to your prana, then from your uddiyana. Okay. And that is the reason why we are creating this cycle. Got it now, everybody? Okay. So ये करने के बाद, कपालभाति करने के बाद, अब हम क्या करेंगे? Next step of कपाल, after कपालभाति, हम क्या कर सकते हैं? अब हमें अपने सिस्टम को क्लीन करना है. Okay, we have made it ready now for cleansing. So we have to start cleansing with pranayama. तो हम कौन सा करेंगे? भस्त्रिका. ठीक है, भस्त्रिका करेंगे. भस्त्रिका everybody knows? Yes, ma'am. Is there somebody who doesn't know? Who can tell about Bhastrika? Okay. Is Bhastrika, active inhale and active inhale, active exhale. Correct? Now, Bhastrika is done in 2 types. One is called Bhastrika breathing. One is called Bhastrika pranayama. By the way. Okay. So don't get confused. आप कभी है ना, सपोज एक किसी का अटेंड कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा अलग टाइप से आप वो भस्त्रिका कर रहे हैं, आप कहीं और अटेंड कर रहे हैं, वो थोड़ी सी अलग टाइप से भस्त्रिका कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइए. 2 तरीके से भस्त्रिका होती है. एक होता है क्विक फास्ट भस्त्रिका, जिसमें कैसे करते हैं, दिस वे. Okay, this is the fast, this is Bhastrika breathing. ठीक है, this is fast, इसमें सब निकल जाता है. In fact, this is very active exhale.
Okay, active exhale. Now the second one, which is there in most of the pranayama thing that we believe in, या हम कहते हैं the traditional form, okay, उसमें कैसे होती है भस्त्रिका? So you're breathing also long, you're leaving also long. लंबी सांस ले रहे हैं, लंबी सांस छोड़ रहे हैं, and both are done with force. Okay, this is Bhastrika प्राणायामा, और हाथ ठीक से ऊपर and थोड़ा झटके से नीचे, इस तरह से. Yes, ठीक है. This is perfect and everyday a must, especially for somebody who is very prone to allergies, very prone to getting issues because of colds. Weather change हुआ तो आपको सर्दी हो जाएगी, weather change हुआ तो sinus हो जाएगा. ये है ना हमारी शिखा. Okay, and very good Neha, Ved आपके लिए भी excellent है. Excellent for those who have hearing problems, excellent for those who have migraine, sinus, headaches. ये सब चीजों के लिए भस्त्रिका is रामबाण. ठीक है. आंखों की रोशनी के लिए भी भस्त्रिका is very good. तो आंखों की रोशनी के लिए भी हमें जरूर करना चाहिए. और of course भस्त्रिका कीजिए, पहले आप जलनेति कीजिए, उसके बाद भस्त्रिका कीजिए, और ज्यादा आप बेनिफिट पाएंगे. Ma'am, exactly. I was going to ask this question. Not just Vastrika. Whenever we start pranayam, like I do Sudarshan Kriya and we mock, it's around 45 minutes. So should I do neti pot first or and then do? Yes, absolutely. Why you should do neti first? In order to breathe more. What is the deeper. sequence? अभी हमने 5 Cleansing. What is the first Okay, one? okay. Cleansing the Excretion. क्या बोलते हैं उसको शिखा? षट्कर्म. Okay. Okay. So षट्कर्म सबसे पहली चीज होती है. And Jalaneti is a part of Excretion. षट्कर्म. Yes. तो इसीलिए कभी कंफ्यूज मत होइए. Never now get confused. हमें जो भी cleansing processes करने हैं हम पहले करेंगे. ओके, उसके बाद फॉलो करेंगे. सिंपल, करेक्ट. उसके बाद आसना करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे. तो जलनीति वगैरह कर लेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू भस्त्रिका. ओके, सो आप अगर ये करेंगे तो आपको कोई भी तरह के ये सारे इश्यूज जो होते हैं ये फिर आप अवॉइड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं होता है. ओके, सब चीजें होती हैं हम सबके साथ. We can tackle it more efficiently. Yes, exactly correct. You will be able to overcome all these things very efficiently, very easily. So भस्त्रिका, अच्छा भस्त्रिका करने के लिए शुरुआत में आप एक साथ काफी भस्त्रिका के राउंड्स नहीं कर पाएंगे. ऐसा होता है कभी कभी. तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. So you see your own energy. Can you do 20 rounds, then take a break of 30 seconds, 1 minute. Then again do another round. Then again you take a break. आप इस तरह से भी करेंगे तो बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्डअप होती है. वो सेकंड्स में जो आप ब्रेक देते हो ना, 30 सेकंड्स का या 1 मिनट का, उसमें आपकी एनर्जी इनफैक्ट वापस बिल्डअप होती है. सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू डू. बीच में ब्रेक देना. डोंट वरी एट ऑल. सोचिए मत कि अरे आई एम वेरी वीक, अरे आई कांट डू इट. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई 50 के बाद ब्रेक लेता है, कोई 30 के बाद ब्रेक लेता है, कोई 10 के बाद ब्रेक लेता है. प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप. सो टुमारो अगर आप सब प्रैक्टिस करेंगे, आई वांट यू टू पुट इट ऑन द ग्रुप कि आप
कितने बाद इस राउंड के बाद आप ब्रेक ले रहे हैं और फिर वापस कितना कर रहे हैं? सो भस्त्रिका, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पुट how many minutes you did Kapalbhati. Even in Kapalbhati, you can take a break, take 30 seconds break, 1 minute break, again do round. Okay. Kapalbhati आप 10 मिनट 15 मिनट जितना आप करेंगे ना, it is superb. मैम एब्डोमिनल पेन नहीं होगा उतना, मतलब फर्स्ट टाइम लाइक व्हेन आई डू इट First time, that's why. So be careful how much you can do. 10 minutes. So do 3 minutes, 9 minutes. Okay, do like that. Then do Bhastrika. So, अच्छा, भस्त्रिका में और चीजें क्या होती है? किसी को गिडीनेस फील हो सकता है, ठीक है, किसी को गिडीनेस फील हो सकता है, किसी को खांसी आ सकती है, किसी को ऐसा लग सकता है कि ओके थोड़ा सा आंखों के सामने ऐसे थोड़ा सा धुंधलापन है. Always while doing pranayama, keep a glass of warm water with tulsi. हमेशा एक निवाया पानी का ग्लास तुलसी के साथ अपने पास रखा कीजिए. एंड और एक या तो एक पत्ता तुलसी का मुंह में रख सकते हैं. ओके, एंड देन यू जस्ट टेक अ सिप एंड देन यू कीप डूइंग इट. यू विल फील गुड एनर्जी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बट एक्सेस नहीं करना है हम. You should know. So that is Bhastrika. Next हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? Ujjayi breath. Ma'am, but in Sudarshan Kriya we do Ujjayi breath first and then do Bhastrika. So should I change No the problem. sequence or is that No. okay? You Okay. can absolutely do both. उलट पुलट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आप उज्जय पहले कीजिए, भस्त्रिका बाद में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. भस्त्रिका पहले कीजिए, उज्जय बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ओनली थिंग इज कि कपालभाति पहले करनी चाहिए एंड जो अनुलोम विलोम है जिसे हम कहते हैं सुख क्रिया जिसे कहते हैं, शुद्धि क्रिया जिसे कहते हैं, ये लास्ट में करते हैं. दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल. ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी. सो कपालभाति इज फर्स्ट, अनुलोम विलोम या शुद्धि क्रिया या सुख क्रिया ये लास्ट में होती है. बाकी बीच में यू कैन शिफ्ट. भ्रामरी करेंगे. ओके, दिस इज भ्रामरी. ऑल सेंसेस, eyes, nose, lips and ears, कान. ठीक है. And we have to hum. Humming करेंगे हम. आउम कैसे? Breathe in. फिर एक लंबी सांस लेंगे. फिर again humming and your thumb should close your ears. और इसमें उंगलियां कहाँ होंगी? One is on your right here next to your eyebrow, yeah. Then eyes, then nose, जो nostril है ना, यहाँ पर होगा वो. Yes, like this. Right next to your sinus. Lips, like this. ठीक है? And your thumb will close your ears. So like this. ठीक है? So this is Bhramri. Okay? This also as long as you can do it. जितनी लंबी करेंगे, जितनी देर तक करेंगे, you will feel very relaxed. Again, insomnia जिसको है, नींद ठीक से नहीं आती है, आप रात को भ्रामरी करके सोइए. Feels really good. ठीक है?
आंखों में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप आंखों में क्या करेंगे, एक एक ड्रॉप घी या एक एक ड्रॉप नारियल तेल या एक एक ड्रॉप कैस्टर ऑयल डालेंगे, आंखों को शांत करेंगे, भ्रामरी करेंगे, आंखों में डालेंगे, नाक में डालेंगे, ओके, कान में भी आप एक एक ड्रॉप डाल सकते हो, और उसके बाद भ्रामरी करिए और फिर सोइए। वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। तो दिस इज एज लंबी, हम जितना लंबा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और फिर है उज्जयी। उज्जयी ब्रेथ इज व्हाट? उज्जयी ब्रेथ इज टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम द थ्रोट। Taking breathing in from the throat, breathing out from the throat. और जब आप उज्जयी अच्छे से करने लग जाते हैं तो आपको केचरी भी साथ में करनी चाहिए। ओके, केचरी कैसे करते हैं? अपना जो टंग है उसे अंदर, यू हैव टू राउंड इट। सो दिस इज माय थ्रोट। टॉन्सिल दिखता है ना अपने को, टॉन्सिल। हमें क्या करनी है, जीभ को अंदर की तरफ घुमा के वहां तक लेके जाने की कोशिश करनी है। दैट इज केचरी। सो हम जब उज्जयी करते हैं तो हमें कैसी करनी चाहिए? So my tongue is folded inside all the way, as much as you can go, as much, वो जाता है all the way inside your throat, by the way, ठीक है। धीरे धीरे with practice it goes. So सांस लेते समय आप चाहें तो नॉर्मल थ्रोट से लेंगे, then roll your tongue in, और जब हम सांस लेते हैं उज्जयी, तो जब लेंगे तो उसे होल्ड कीजिए वहां। ओके, एक्चुअली उसको होल्ड करने का सिस्टम होता है कैसे? टेक योर नेक बैक ऐसे, एंड देन योर चिन टू योर चेस्ट। दिस इज योर बंधा। दिस इज कॉल्ड जलबंधा। आई थिंक आई विल डू दिस स्पेशल क्लास नेक्स्ट वीक ऑन बंधास। अभी के लिए यू शुड रिमेंबर उज्जयी ब्रेथ। सांस लेते हैं, वेरी गुड फॉर थायराइड, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। वाई? क्योंकि आपका सब यहाँ पर जितनी भी नली है वो सब साफ होती है। सो इट इज वेरी गुड फॉर दैट। विशुद्धि चक्र खुलता है। तो ऐसे कोई है यहाँ पर जिनको स्पीच की तकलीफ है, जिनको स्पीच की तकलीफ है, स्टैमर करते हैं, ओके, स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब टॉन्सिल्स के इश्यूज होते हैं, बहुत जल्दी से गला पकड़ लेता है, ये सब चीज के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। Ma'am, what is stammering? स्टैमरिंग, जो बीच में लड़खड़ाते हैं ना बोलते समय, सो दैट इज स्टैमरिंग। तो आप अगर आपको ऐसा है कि आप लड़खड़ाते हो बात करते समय, या आप जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप डरते हो, यू आर शाय, ये थायराइड जिनको है, ये सब तकलीफों के लिए उज्जयी प्राणायाम इज सुपर। ओके, सो उज्जयी ब्रेथ हमें जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ठीक है, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, उज्जयी हो गया, भ्रामरी हो गई। गर्मी के मौसम में शीतला जरूर किया कीजिए। ओके, सर्दी के मौसम में हम शीतला नहीं करते, गर्मी के मौसम में करते हैं। जिनको पित्त की तकलीफ होती है, या आपका जो कोष है अगर दोष है, अगर पित्त ज्यादा है, तो आपको शीतला जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी शरीर आप में को काफा ज्यादा है,
तो आपको शीतला नहीं करना चाहिए। शीतला कैसे करते हैं? दांतों को इस तरह से खोल के तो हमें सांस भरनी है, पूरी ठंडी सांस दांतों के बीच में। उसको होल्ड करना है अंदर और फिर धीमे धीमे सांस छोड़नी है। दूसरा तरीका कैसा है? ठीक है, टंग फोल्ड करेंगे। फिर अंदर टंग रोल करेंगे और उसे होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ेंगे। दिस इज शीतला। बहुत धीमे धीमे, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। Okay, very slow process. Very, very slowly you should do Shitala. Okay, Shitali, Shitala. There are two. Okay, so this is one. तो अभी हमारे टोटल कितने हो गए? बताइए। भस्त्रिका, पहले क्या करेंगे? कपालभाति, भस्त्रिका, भस्त्रिका या उज्जयी, उज्जयिनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राह्मी, कला, शीतली और उज्जयी। उज्जयी, उज्जयी तो बोला ना। तो कपालभाति, उज्जयी, भस्त्रिका, ब्राह्मी, शीतला। कला, ओके, 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अनुलोम। अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम अभी हमने प्रैक्टिस की। अनुलोम विलोम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस इज वन साइकिल। ठीक है, ma'am, and then after this I will do Wim Hof. and after this finally the 7th, the power is Aum. No, ma'am, I'm asking like I do Wim Hof, so I should do Wim You Hof can do before Wim Hof, absolutely. You can. Anulom Vilom. Yes, you can do Wim Hof, no problem. First you should do Wim Hof, then you should do Anulom Vilom. Okay. So अगर आप Wim Hof practice करती हैं, आप पहले उसको कीजिए, फिर you should end it with Anulom Vilom. Okay? Don't do Anulom Vilom first and then do this. उल्टा हो गया वो। तो आप पहले वो करेंगे, फिर आप अनुलोम विलोम करेंगे। You will complete your cycle with Aum meditation. Okay? Aum meditation, everybody knows how to do? Not really? Okay, so now I have it for the next time. We are going to do Aum. We are going to do the bandhas. Okay? And we are also going to see कि आप ये 6 जितने हमने आज किए ये कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस रोज कीजिए। आप चाहे उसे आधा घंटा करिए, चाहे 45 मिनट्स करिए, चाहे 20 मिनट करिए, लेकिन करिए every day regularly. And all of you on the group, just put tick mark for today. And best will be, of course, आप कितने मिनट तक कर पाए, that will be superb. लेकिन आप नहीं भी tick mark करेंगे, at least you should mention that yes, done for today. How are you feeling today? Okay, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कुछ भी हो तो आप जरूर भेजिए. And then next week now we will continue with these. Yes, questions.
नुपुर जी, ये जो टंग फोल्ड करके, मैं तो खैर पहली बार, मुझे पता नहीं था चेका ही होता है ये। आपने टंग फोल्ड कैसे की, मतलब बिल्कुल ही आई एम न्यू फॉर दैट, तो मुझे पता नहीं है कैसे फोल्ड किया जाता है। हाँ, ये नहीं कर पा रही, इसको क्या नहीं हो रहा ये? अंदर जा रही है फोल्ड, बीच में से अगर ऐसे ये नहीं नहीं होता है सो डोंट वरी, यू कैन डू दिस वन. ईदर ऑफ द वन करना है क्या? You can do either also, you can do both also, don't worry. Effect you will get equally. ओके, My daughter does even more that tongue flow hold, which I can't do. Okay. So सबके अपनी अपनी कैपेसिटी है, not to. अंदर मोड़ फोल्ड तो अंदर तो हो जाता है, लेकिन ये पहली बार मतलब मैंने देखा कि ऐसे भी होता है क्या टाइम। So I'm ये not fold करते हैं, but don't worry, ये नहीं होता है, आप दांतों के बीच में कीजिए. Okay. आज आप एक वो डायग्राम शेयर करिएगा और सीक्वेंस, मुझे मैं खुद मेडिटेशन मॉर्निंग का लेती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सीक्वेंस जो है ये प्रॉपर होना चाहिए। Yes. तो तो वो सीक्वेंस एक्चुअली मैं आपको अलग से मैं शेयर करूंगी, क्योंकि वो डायग्राम में नहीं है. That is not part of the diagram. The diagram is only showing you your pranic body. But the sequence of what to follow, I will write separately for you. That I will write separately. Yes, Neha. नुपुर दीदी, ये उज्जैन के बाद में हम एक्चुअली कपालभाति करते हैं हमारे इसमें, बट आई हैव नोटिस दैट कि मतलब कपालभाति करके और बंधा करना होता है, तो ऐसे जो SSY का जो प्राणायाम है उसमें, तो व्हेन आई डू दिस कपालभाति एंड देन डू द बंधा, I've always noticed that, I start getting a lot of acne. Okay. Okay. So then, I've stopped doing it completely. मतलब मैं कपालभाति नहीं करती हूँ फिर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कपालभाति करती हूँ और फिर वो जब बंधा करती हूँ उसके बाद में इतनी हीट जनरेट होती है कि मतलब कंटिन्यूसली एक्ने होता है मुझे। तो फिर कपालभाति इज फॉर जनरेटिंग हीट. जब कपालभाति करते हैं तो अपनी बॉडी एक्टिव हो जाती है, बेसिकली एनर्जी एक्टिव हो जाती है. तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा करो. मैं पर्सनली कहूंगी थोड़ा करो, और इतना लंबे समय का मत करो. ठीक है. अच्छा, बंध कौन सा बंध करते हैं आप? So basically महत प्राणायाम बोलते हैं हम उसको. So we just fold our hands like this and then we go like this, and I don't know what. Yes, I know what you mean. Yeah. So I do it like this, go down, straighten my this, and then I do Kapalbhati. लॉक करते लॉक करके. नहीं, हाँ, पहले कपालभाति करते हैं और उसके बाद में फिर उसके बाद में then we, once the Kapalbhati is done, then we go down, we inhale while going backward a little, तो वो पूरी सांस अंदर ली जाती है. Correct. और फिर उसके बाद में we come back to our straight position and then we do the locking. The locking. हाँ, यहाँ पे लॉक करते हैं फिर और वो नहीं पीछे लॉक. जितनी देर रखना है रखना. जलबंधा. हाँ, और फिर उसके बाद में we जैसे लॉक छोड़ना है तो we go, first we just move our chin up, then we normally release our breath. फिर So नेहा, आप उसमें मूल बंधा भी करती हैं? बंद मतलब बंद यानी सब पूरा बंद बेसिकली. तो जिसको हीट की तकलीफ होती है ना, में मूल बंधा ज्यादा नहीं करना चाहिए. ओके. क्योंकि बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, अपनी हीट जनरेट करते हैं हम, और जो बंधा होता है, बंद मतलब क्या, उस एनर्जी को आपने वहां पकड़ लिया है. ओके. जब बंधा छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन. इट इज लाइक अ पाइप. पानी जा रहा है पाइप से,
अब आप उस पाइप को बंद कर देते हैं और फिर पाइप को अचानक से जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एनर्जी फ्लो। सो आपका हो सकता है नेहा पित्त, ओके, यू आर अ पित्ता, करेक्ट। सो जो पित्ता होते हैं वो क्या हो जाता है, ऑलरेडी उनकी एनर्जी थोड़ी सी, दे आर ऑलरेडी हॉट, दे आर वार्म पीपल, ओके। सो वार्म पीपल में जब हम इस तरह से एनर्जी जेनरेट करते हैं, तो थोड़ा बहुत भी करते हैं तो एनर्जी जेनरेट हो जाती है, राइट। इट शोज यू हैव अ वेरी गुड मेटाबॉलिज्म which is perfect, okay. So then you should avoid doing too much of that, okay. And what you should do whenever you do this practice, that means you should always follow it with Shitala. I do dhoti and then I do shitli also, but still the heat is so much in the body. I mean, I've been noticing this, so I've just stopped it completely now. Otherwise, they say that all the pranayamas in SSY, they say it so that that we do all the pranayam. These are not the pranayam. So the only thing Mahat is the only pranayam for which we actually prepare our body to do Yes. this one Okay. pranayam. So otherwise we call it as pranayam, but they are not pranayamas. So this is what it has been told. But I've always noticed this, so I've just stopped it completely now. I don't do it. And all these practices are not necessary for everybody to do for such long time. That is why even if you do it in moderation, for example, एक योगी जब करते हैं तो जब वो अनुलोम विलोम करते हैं तो वो अनुलोम विलोम only just अनुलोम विलोम also is done at least for 1 hour, क्योंकि हम सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जागृत करना है तो आपको इनफैक्ट आपका अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं हम शुद्धि जो होती है उसको हम 45 मिनट्स 1 आवर करते हैं, लेकिन एवरीडे मेंटेनेंस के लिए 10 मिनट्स इज ऑल्सो ओके, बट 10 मिनट्स तो हमें जरूर करनी चाहिए। देन अदरवाइज आप 10 मिनट भी अगर नहीं करेंगे तो इट इज लाइक आपने गैस पे तवे को चढ़ा दिया और उसको बिना गर्म किए आप उस पे रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा है। तो इसीलिए उसको उतना जागरूक करना जरूरी होता है। आपका गुड पार्ट इज हो सकता है कि आपके प्राण ऑलरेडी जागरूक हैं, एज इन इट इज ऑलरेडी एक्टिव, ओके। सो इट नीड्स टू बैलेंस। तो सबसे अच्छी चीज मैं तो कहूंगी कि आपको मुद्रा करना चाहिए, ओके। सो चिन्ह मुद्रा कीजिए, जब आप करते हो ना तो चिन्ह मुद्रा कीजिए ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहे, ओके। सो डू मुद्रा व्हाइल डूइंग ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहे एंड दैट फायर इज नॉट सो मच कि यू कैन नॉट मैनेज इट। सो मुद्रा करिए जरूर। दूसरा, फिर उतना बंध न अपनाएं, खासकर मूल बंध, तो वो है। सो एक तो उसका ध्यान रखिए। एंड तीसरा, कभी भी आप करें तो आपको शीतला शीतली जरूर करना चाहिए, ओके। वन मोर थिंग आई विल टेल यू टू डू इज, आप क्या करिए, प्राणायाम जब प्रैक्टिस करती हैं तो यू शुड पुट अ वेट क्लॉथ अराउंड योर बेली। आपका पेट जो आपका पार्ट है ना, around your stomach region. So while doing the pranayamas or before After. that? After doing the pranayamas. You can apply a cold compress like a wet cloth. अच्छा. Okay. So what happens is, अगर ऐसा कुछ हुआ है जहां पर आपको ज्यादा गर्मी हो गई है या ज्यादा ये हो गया है, तो the wet compress will allow you to cool down. अच्छा. Okay.
Okay. But will that not disturb Another good thing what you can do is whenever you do this, we always say नहाना नहीं चाहिए एकदम से प्राणायाम करने के बाद. हाँ, ठीक है, आपको एटलीस्ट आधा घंटा पौन घंटे का गैप देना चाहिए. तो जब आप नहाते हो उसके बाद तो हैव अ बाथ विथ कोल्ड वाटर और टैप वाटर, नॉर्मल वाटर, नॉट विथ हॉट वाटर. ओके, वो तो मैं कर I don't do कपालभाति. Actually पहले मैं करता था तो once in a week करता था, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला कि उसमें इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि आपको रात को नींद भी नहीं आती. That is for standing Kapalbhati. स्टैंडिंग कपालभाति करता था. That is तो- very powerful. Yeah, it is. हाँ, तो So हम once in a standing week करते हैं. करता था. Yeah, we do standing Kapalbhati as one of the kriyas for awakening the Kundalini. ठीक है, तो वो एक क्रिया का एक हिस्सा होता है इनफैक्ट स्टैंडिंग कपालभाति. अच्छा. तो इसमें बहुत शक्ति होती है. आप बैठ के कीजिए, दैट इज बेटर. और एक्चुअली ये किसके लिए करते हैं कपालभाति? बिकॉज आई डू प्राणायाम एंड देन मेडिटेशन. आई सिट फॉर मेडिटेशन एंड दैट्स Correct. So actually Kapalbhati is not a pranayama, it is a part of cleansing process. So it is to help you awaken and clean your nadis, your Ida and Pingla. उसको clean करता है Kapalbhati. It gets you ready. That is what is Kapalbhati. so once the bandhas, once in a week ना, then you have cleansing का process जो करना है वो once in a week ना. पर आप अगर प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो we always say you should start with it, ताकि आप रेडी हो जाएं उसके लिए. You don't need to do too much. You can do little also. and what we have learned is completely different. I'm feeling it now because SSY pranayams are a little, it goes in a different manner. So we first do Ujjayi, like आप जैसे बोल रहे हैं, we do our mudras along with the Ujjayi pranayam. We breathe in and breathe out through throat. And then we prepare our body for this Mahat Pranayam. So where we just do 25 set, 25 breathing, breathe out thing, not more than that. So that is like, but it is like, a forceful exhale, only for 20 till 25 count. And then we do that bandha. So it is being said to us that, So Neha, I will tell you personally, confuse मत हो. देखो, अगर आपके लिए वो काम कर रहा है, अगर आपको वो चल रहा है, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप you feel good, you are healthy, you feel like your body is energetic, you feel कि ये practice से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, then please continue. Don't confuse yourself. Okay. Okay. ये जो मैंने बोला है, this is also the Pitanjali form of the entire process of pranayam. Yeah. The proper traditional Pitanjali form. ठीक है, लेकिन जितने भी आज इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो बाबा रामदेव जी, चाहे वो आज सुदर्शन क्रिया हो, चाहे वो शांभवी मुद्रा हो, चाहे वो SSY हो, वो क्या है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्होंने पता किया है कि अच्छा इसमें से ये अच्छा है, इसमें से ये अच्छा है, उस तरह से they have put together a routine, they have put together a system, ठीक है, which they feel is the best way of doing something. तो उन्होंने ये क्रियास को क्या, ये सारे प्राणायाम का टेक्निक्स को क्या किया है, एक साथ में लाकर एक उन्होंने क्रिया बना दी है उसकी. तो पर्सनली आई फील जिसको जो सूट करे उसे फिर वो अपना अडेप्ट कर लेना चाहिए. ओके, किसी को शांभवी मुद्रा नहीं जमती, उन्हें सुदर्शन क्रिया जमती है, तो वो सुदर्शन क्रिया करे.
जिन्हें पतंजलि का सूट होता है उन्हें पतंजलि का करना चाहिए। ओके, जिन्हें रामदेव बाबा जी का जमता है वो रामदेव बाबा जी का करें। आपको अपने आप के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए ताकि आप अपनी बॉडी को समझ सके। और जब आप अपनी बॉडी को समझ जाते हैं तो अपने आप ये रूटीन बना सकते हैं। So the beauty of our body is that you should be able to understand your body best. Okay, this is what we should understand, and we should know the significance of every practice. हर एक जो प्राणायाम होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। उसके बाद फिर आप जैसे फॉलो करें अपनी क्रिया, नो प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज यू नो, हर जन सब जन को बंधास तो नहीं चलते हैं। उसमें एनर्जी बहुत होती है। सो इट इज फैंटास्टिक कि चलो तुम्हारी एनर्जी इतनी हाई है तो उसको फिर उतनी जरूरत नहीं है। और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और आपसे मैनेज नहीं हो पाती है तो देन यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज दैट एनर्जी ऑल्सो। ओके, सो वी विल टॉक मोर ऑन दिस